Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start lecture number 7. Um, the subject is computer organization and assembly language. Okay, in this class we will continue with some more assembly instructions. Before this lecture, we have covered 6 lectures. Here you can see on the screen lecture 1 to lecture number 6, and today we're going to start lecture number 7, part A. I have divided this lecture into two parts, lecture 7 part number A and B. So in this class we will discuss how a variable is created. फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज डेटा टाइप. जैसे कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में we have data types like integer, float, etc. So in assembly language we also have some data types which has size in bits, and also they are used for defining variables. So data types describe a set of values that can be assigned to a variable of the given type. The essential characteristic of each type is its size. Okay, there are some types which consist of 8 bits, 16, 32, and so on. An emulator, which you are currently studying in this class, and MASM. MASM is is another assembler which is also used for running assembly codes, but here in this class we are studying emulator 86. Now what is MASM? So let me tell you, it is Microsoft assembler. See on the screen, MASM is Microsoft macro assembler. Okay, this is another assembler that is used for running assembly language codes, uh, but in this class we are already working in emulator 86. Okay, there are multiple data types like here in MASM. MASM supports these kinds of data types like byte. Okay, byte consists of 8 bits. In emulator we use a db for byte, define byte. इसी तरह हमारे पास है sign byte. It is used for sign integers like which have some negative values. It can consist of positive and negative values. अच्छा, बाइट का जो डबल है वो हमारे पास वर्ड है 16 बिट्स का. इस तरह हमारे पास साइन वर्ड भी है. साइन इंटीजर्स के लिए भी है डबल वर्ड. ओके, और ये 32 बिट्स का होता है हमारे पास. सो इन एमुलेटर वी हैव डी. ओके, डबल वर्ड होता है तो है 32 बिट्स का डिफाइन डबल वर्ड एंड सो ऑन. ओके, in emulator today we will use the db command, which is used for defining a single byte variable, and also dw, that can be used for defining a variable of 16 bits like word. Okay, the rest of data types are supported by MASM. So जो remaining types हैं उनको आज हम नहीं पढ़ेंगे because emulator उनको support नहीं करता. Okay, first I'll explain what is byte, or you can say what is a define byte. Define byte is used in emulator. So here you can see in the screen. पहले हम क्या करेंगे, we will declare a variable name like abc, value 1, value 2, anything you can write here, that is user defined variable. इसके बाद है define byte. define byte का मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल है इसका साइज होगा 1 बाइट का, एंड वी विल असाइन अ कैरेक्टर टू दिस वेरिएबल वैल्यू 1. इसी तरह अगर हम मैज़म की बात करेंगे तो मैज़म असेंबलर में वी विल यूज दिस लाइक वैल्यू 1, इसके बाद बाइट एंड द वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे. तो ये भी हमारे पास 8 बिट का है और ये भी हमारे पास डिफाइन बाइट एक ही बिट का है. सो आज जो है हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसमें हम वैल्यू 1 dba इस तरह के सिंटैक्स को यूज करेंगे. ओके,
क्वेश्चन मार्क हमारे पास क्या चीज है? इट इज इनिशियलाइजर लीव्स द वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड. So if I write variable name value define byte and question mark, so it means this variable is not initialized. Like uh, if I write here, like in C or C++, if I write like integer value and this, so मैंने इस वेरिएबल वैल्यू को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की. सो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है वैल्यू वन, जिसका साइज हमारे पास 1 बाइट है, ये हमारे पास एम्प्टी है. इस तरह वेरिएबल नेम डिफाइन वर्ड एंड एम्प्टी, सो ये हमने एक एम्प्टी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया. ओके इस तरह मल्टीपल इनिशियलाइजर्स, आप जिस तरह हम एरे के अंदर करते हैं कि हम एक एरे इज सिंगल वेरिएबल जिसको हम मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं. तो here if I write list is a variable name user defined variable name, इसका साइज है डिफाइन बाइट यानी 1 बाइट, और देन 10 20 30 एंड 40. सो इसको हमने 4 वैल्यूज असाइन की और हर एक वैल्यू का साइज है 1 बाइट. सो लिस्ट 0 पे हमारे पास 10 होगा, लिस्ट 1 पे हमारे पास 20 होगा, इस तरह एंड सो ऑन. सो ये जो है ना हमारे पास वी कैन इनिशियलाइज वन वैल्यू एंड आल्सो वी कैन इनिशियलाइज और असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू अ सिंगल वेरिएबल. एग्जांपल की तरफ हम आते हैं. एग्जांपल में अगर आप देखें, सो वी हैव रिटन अ प्रोग्राम, ओके, जिनको आप यहाँ से रन भी कर सकते हैं. वेरिएबल डिफाइन करें सिंगल बाइट का और इसको 49 असाइन किया गया है. इस तरह वेरिएबल वन है, इसको 55 असाइन किया गया है. इस तरह मूव एल आर पर उसको मूव किया, इस वेरिएबल को हमने एल के अंदर मूव किया और फिर एल के साथ हमने वेरिएबल वन को ऐड किया. फिर डीएल को मूव किया ताकि हम इसका प्रिंट ले सकें, और इसके बाद हमारे पास आउटपुट कमांड के लिए इंटरप्ट 21h कॉल हो जाएगा और द रिजल्ट इज इक्वल टू एच. एच इसलिए है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आस की कोड है वो हमारे पास एच ही आएगा. सो लेट हैव अ ट्राई ऑन रनिंग दिस प्रोग्राम. सो आई एम स्टार्टिंग एमुलेटर 8086. इसको भी मैंने रन किया. I will write this program. Why not copy this program ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए. इसको यहाँ मैंने कॉपी किया. कॉपी करने के बाद यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वेरिएबल है डिफाइन बाइट 49, इस तरह वेरिएबल वन डिफाइन बाइट 55, इनको फिर ऐड किया गया और इसका उन्होंने स्क्रीन पे आउटपुट लिया है. सो लेट मी चेक द आस्की कोड के एच कहाँ पे है, स्मॉल एच. सो हेयर इन द स्क्रीन यू कैन सी एच इज हेयर और उसके सामने है इंटीजर 104. तो अगर हम 49 और 55 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 104 ही आएगा. लेट मी इमुलेट दिस प्रोग्राम. इसको रन करें. Okay, and here you can see H on the screen. Okay, here if you run this program single step by step like this one, पहले क्या होगा, हम सिंगल स्टेप किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एल में वेरिएबल मूव होगा, वेरिएबल के अंदर जो है 49 है फर्स्ट वन में. सो सिंगल स्टेप ये देखिए एल में 31 मीन्स कि ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है. अगेन सिंगल स्टेप, अब क्या हुआ कि दोनों ऐड हुए तो हमारे पास 68 है, 68 इन हेक्सा. अगेन सिंगल स्टेप, अभी हमारे पास है डीएल में 68 आया. अगेन सिंगल स्टेप, हेयर मूव एच टू मीन्स कि अब हमारे पास ये आउटपुट आपके सामने आएगा and this is the value h. Okay, so this was the first program of today's lecture. Let me go to the slide again. ओके, इक्वेट जो है हमारे पास एक ऐसा कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स के लिए.
इस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट मींस कि हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो कांस्टेंट वेरिएबल के लिए हमारे पास जो है ई क्यू यू, ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड यानी जो बिल्ट इन कमांड है। वेरिएबल आप ले लें, कोई भी वेरिएबल ले लें और इसके बाद लिखें ई क्यू यू यानी इक्वेट एंड इसको 20 असाइन कर दें तो वेरिएबल के अंदर 20 आ जाएगा। बट दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप फिर मतलब मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। एंड हियर यू कैन सी इट। ओके, फिर इसके अंदर मतलब फर्दर इसमें एडिशन हुई है और इसका फिर आपने आउटपुट लेना है। तो आप इनको खुद भी ट्राई करें, वेरिएबल की वैल्यू को आप जो है ना इंक्रीमेंट करें एंड यू कैन देन यू विल सी द चेंज। अच्छा, सबसे जो अहम चीज़ है वो हमारे पास ये है कि अगर हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेंगे तो किस तरह लेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि हमने सिर्फ आउटपुट लिया है। नाउ हाउ कैन यू टेक एन इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। जिस तरह आप जो है ना सी के अंदर स्कैनएफ का कमांड ट्राई करते हैं या आप सी प्लस प्लस के अंदर सी एन का कमांड जो है ना आउटपुट ट्राई करते हैं। लाइक सी एन इज यूज्ड in C++ and scanf is used in C language. Okay, so today I will discuss this input command. So जिस तरह output के लिए मैंने ये बताया था कि we have move age to interrupt 21 age, it is used for output command. So ये जो है move age 1 and interrupt 21 age ये है इनपुट कमांड। और इनपुट लेने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू है वो जाएगी कहाँ पे, दैट नोट करें दैट द इनपुट वैल्यू गोज टू एल रजिस्टर बाय डिफॉल्ट। देखिए एल हम पहले पढ़ चुके हैं कि एल अक्सर मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है ना किसी भी इनपुट कमांड अगर हम दे दें लाइक मूव एज 1 तो इसकी वैल्यू इनपुट होने के बाद जाती है एल में और फर्दर आप एल के साथ कुछ ना कुछ मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं। सो लेट हैव अ ट्राई ऑन दिस what input command. So I will just replace this data. चलिए ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह जो है ना हम इसको इनपुट देंगे। मूव एच 1 इंटरप्ट 21 एच, यानी आप यहाँ पे इनपुट दे देंगे। इनपुट देने के बाद जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगी, एल में। अब एल के अंदर क्या सेव है, सो लेट मी मूव बी एल एल, यानी एल में जो वैल्यू आई है उसको आप मूव करें बी एल में, ठीक है। और इसके बाद ऐड करें बी एल में सपोज 10, मूव करें डी एल में बी एल को जी। तो डी एल में बी एल की वैल्यू को आप मूव करें और इसके बाद है आउटपुट कमांड, ठीक है। तो एट द एंड राइट आर ई टी रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ओके, so let me save this program first and then we will emulate it. So emulate and then run. Now here it is asking the input from u. Okay, so input में suppose मैं put करता हूँ 50 को। okay, oh sorry, well मैंने देखिए यहाँ पे 5 को एंटर किया। अगेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, run, sorry, let me close this program, emulate, run। देखिए जे हुई मैं कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, ठीक है, तो मैंने सपोज एंटर किया 9। ओके, सो 9 एंटर करने के बाद इसने मुझे आउटपुट दिया है सी। जो पहला वाला है ये मेरा इनपुट है और जो सेकंड वाला है ये मेरा आउटपुट है। सो लेट मी चेक इट कि जब मैंने 9 एंटर किया तो 9 का जो आस्की है वो हमारे पास क्या है। सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, here is 9, so 9 means 57,
इट मीन्स कि मैंने 57 एंटर किया है, फिर इसके साथ जो है ना 10 को ऐड किया गया है, ठीक है। सो 57 प्लस 10 इज इक्वल टू 67। नाउ व्हाट इज 67 है, और इसका जो आस्की है वो हमारे पास सी है। देखिए इमुलेटर जो है वो इनपुट लेता है आस्की में और आउटपुट देता है आस्की में, सो दोनों आस्की में होंगे, ठीक। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, I am closing the ASCII. Again run this program, emulate, run. If I enter 9, ओके, सो ये 9 जो है ये हमारे पास ASCII है, ओके। और इसको भी हम चेक कर लेंगे दोबारा, और इसका जो आउटपुट है सी भी ASCII है। सो आप जाए ASCII में, अब यहाँ पे 9 को सर्च करें, here is 9 क्या के 57 है। So 57 plus 10 it equals to 67, so 67 is here, it is equal to C, it means के C is the output command। so इस तरह आप जो है ना मतलब एक, दो या तीन वैल्यूज भी एज इनपुट दे सकते हैं। सो लेट मी ट्राई हाउ टू एंटर द सेकंड वैल्यू। कंट्रोल सी को मैंने किया, यहाँ पे मैंने क्या किया कंट्रोल वी। अब देखें फर्स्ट इनपुट यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके साथ फिर 10 को हम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा सेकेंड आउटपुट। सो इफ आई राइट अ कमेंट हेयर, इट इज द फर्स्ट इनपुट एंड इट इज द सेकेंड इनपुट। ओके, सेकेंड इनपुट लेने के बाद अगर मैं यू करूँ कि मैं मूव करूँ या चले मैं ऐड करूँ BL के साथ AL को अगेन, ओके। सो अब इस प्रोग्राम का जो सीक्वेंस कुछ यूं होगा कि फर्स्ट इनपुट वो BL में कॉपी हुआ, BL के साथ 10 ऐड हुआ, ये फर्स्ट स्टेप था। दोबारा इनपुट और वो इनपुट आया AL में और इसको मैंने BL के साथ ऐड किया। सो अगर हम प्रीवियस एंट्री को दोबारा ट्राई करें तो वो आया था हमारे पास 67, और दोबारा अगर हम कुछ मूव एंट्री करेंगे तो सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सपोज कोई भी लाइक 8, ओके। रन दिस प्रोग्राम, एमुलेट, रन। 9 is the first input value, and if I enter another value like 8, ओके, तो मैंने दो एंट्रीज की हैं 9 and 8 in ASCII and the output is curly bracket, okay। now check the ASCII, 9 is 57, then 8 is 56। सो 57 और 56 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आता है 113, आई थिंक 113 आता है कि नहीं, 123 आता है, सॉरी 123। सो 123 is here, so this was our output, okay। so students, this was how you can enter values from the keyboard। let me again come to the slide। कंपेयर इंस्ट्रक्शन ये मेरे ख्याल में आप पढ़ चुके हैं, हाउ टू कंपेयर टू वैल्यूज़। सो कंपैरिजन के लिए मैंने बताया था कि कंपैरिजन इज जस्ट लाइक द सब्ट्रैक्शन। आप फर्स्ट वैल्यू से सेकंड को माइनस करते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन वैल्यू है वो हमारे पास चेंज नहीं होती। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास डेस्टिनेशन वैल्यू चेंज होती है, ओके। और इट रिजल्ट्स इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, फ्लैग्स आर सेट, यानी कंपेयर कमांड के थ्रू हम फ्लैग्स को सेट कर सकते हैं, ओके। ऑपरेंड्स कैन बी रजिस्टर, मेमोरी एटसेट्रा, इसको आप पढ़ लें, आप पहले इसको पढ़ भी चुके हैं। हियर इज एग्जांपल, move AL5, move BL5, then compare CMP, AL and BL, ओके। अब अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, इस UB में
एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन कंपेयर में जो है एल की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ ये माइनस कर लेता है। ओके, एक्सचेंज, दिस इज द न्यू एंड फ्रेश इंस्ट्रक्शन। एक्सचेंज ये करता है कि किसी भी दो रजिस्टर्स या किसी भी दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को ये एक्सचेंज कर लेता है। लाइक इन दिस यू कैन सी इट, ऑपरेंड 1 की वैल्यू को सेव करेगा ऑपरेंड 2 में, और ऑपरेंड 2 की वैल्यू को सेव करेगा ऑपरेंड नंबर 1 में। इट इज एग्जांपल, मूव कर एल में 5, मूव कर एच में 2, देन एक्स सी एच जी, एक्सचेंज एल एंड एच। अब ये होगा कि एल की जो वैल्यू है वो जाएगी एच में और एच की वैल्यू आएगी एल में, so it will be exchange. Okay, so why not try uh, this example. It is also the last slide, so here you can we can try. Okay, org 100h. Okay, let me modify this first program. Move al 20, move bl 30। अब इनको हम एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करो एल एंड बी एल को, दोनों की वैल्यूज को एक्सचेंज कर देगा। एक्सचेंज करने के बाद हम इस तरह करते हैं कि मूव करते हैं डीएल में एल को, ठीक है, और ये इसको प्रिंट करवा देगा। अच्छा देखिए, एल की वैल्यू हमारे पास 20 है, लेकिन एक्सचेंज ट्राई करने के बाद इसमें 30 आ चुका है। अभी कंफर्म करते हैं कि हमें ये 30 आउटपुट देता है कि नहीं। इमुलेट, रन, व्हाट इज द आउटपुट। अच्छा, ये सिंबल जो है ये हमारे पास आउटपुट। अभी इसको हम चेक करते हैं ASCII में। तो ASCII में अगर हम 30 को देखें, 30 के सामने ये सिंबल है, इट मीन्स कि दिस इज द एल वैल्यू इज 30, यानी एक्सचेंज हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, this was the end of this lecture. Inshallah, in the coming lecture, I will come with some more assembly instruction. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.